Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Jinnah Competitive Academy. I am Professor Shoaib Mirza. Today we will cover the next two or three chapters of marketing. So let's start from chapter number 10, that is about pricing. अब जो है हम लास्ट टाइम हमने स्ट्रेटजीज की बात की थी। अब हम फोर पीस का जो वन फर्स्ट मेजर कंपोनेंट है प्राइसिंग, उसके बारे में बात करेंगे। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे। हाउ कंपनीज डिसाइड प्राइस। तो यू पीपल नो प्राइस क्या होती है। प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी that is charged for any product. Price is the amount of money charged for a product or a service. More broadly अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो कहता है प्राइस इज द sum of all values that customers give up to gain the benefits of having or using a product or service. Done. यहाँ तक ही कर लें, बेहतर है। Where price is the only element in the marketing mix that produces revenue. All other elements represents cost. जैसा कि प्राइस के बाद आपका क्या आता है, प्लेस, उसका रेंट, प्रमोशन, उसका भी क्या एक्सपेंस आता है, प्रोडक्ट आपकी जो है वो भी क्या है, एक्सपेंस ही आती है, आपकी कॉस्ट का बनती है। ठीक है। प्राइस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट अनलाइक प्रोडक्ट फीचर एंड चैनल commitments. Price can be changed quickly. At the same time, price is the number one problem facing many marketing executives, and many companies don't handle pricing well. Some managers viewing pricing as a big headache, preferring instead to focus on other marketing mix elements. यहाँ से आपको इसकी प्राइस की अहमियत का तो पता चल गया होगा। ठीक है। मेजर प्राइसिंग स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं आपकी, कहता है द प्राइस द कंपनी चार्ज विल fall somewhere between one that is too low to produce a profit and one that is too high to produce any demand. तो फिगर 10.1 है, समराइज मेजर कंसिडरेशन इन सेटिंग प्राइसेस। ठीक है, चलिए हम इसको देखते हैं। कस्टमर परसेप्शन जो है ये बहुत मैटर करती है। हमारी परसेप्शन क्या है, जो चीज़ थोड़ी सी महंगी मिल रही है हम कहते हैं ये अच्छी होगी। ठीक है। कस्टमर परसेप्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स वैल्यू set the ceiling for the price. If customer perceive that the product price is greater than its value, they will not buy the product. ये भी एक प्रॉब्लम है। Likewise, product cost set the floor for a product's price. If the company price the products below its cost, तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो चला जाएगा। In setting its price between these two extreme, जो उसने बताई है ceiling और floor, company must consider several external and internal factors including competitor strategies and price. The overall marketing strategy and mix and the nature of the marketing demand। ठीक है। अब कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या है कि आप कस्टमर जो वैल्यू पर सोच रहा होता है उसके मुताबिक आप रखते हैं, ना ही आप उसकी वैल्यू से अबव रख सकते हैं ना ही बिलो रख सकते हैं। In the end, the customer will decide whether a product price is right. Pricing decisions, like other marketing makes decision, must start with customer value. When customers buy a product, they exchange something of value to get something of value। ठीक है। क्या चेंज करते हैं, दे एक्सचेंज प्राइस देते हैं और बदले में क्या लेते हैं, बेनिफिट लेना चाहते हैं। इफेक्टिव कस्टमर ओरिएंटेड प्राइसिंग इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग हाउ much customer value customer place on the benefits they receive from the product and setting a price that capture that value। अब कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या है, uses buyers perception of value as a key to pricing। Value based pricing means that the marketer cannot design a product and marketing program
and then set a price. Price is considered along with all other marketing mix variable before the marketing program is set. ठीक है, तो कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या है? यहाँ से देखते हैं, सेटिंग प्राइस बेस्ड ऑन बायर्स परसेप्शन ऑफ वैल्यू रेदर देन ऑन द सेलर्स कास्ट। आप जो है लोगों की, जो आपके कंज्यूमर हैं, उनकी परसेप्शन के मुताबिक आप वैल्यू लगा बनाते हैं, ना कि आप अपनी कास्ट के मुताबिक। हो सकता है आपकी कास्ट बहुत कम हो और आपने वैल्यू बहुत ज़्यादा लगा दी हो, ठीक है। इसी चीज़ को ये 10.2 में एक्सप्लेन कर रहा था कि कंपेयर्स वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग विद कास्ट बेस्ड प्राइसिंग। Although costs are an important consideration in setting price, cost-based pricing is often product-driven. Company design what it considers to be a good product, adds up the cost of making product and set a price that cover cost plus a target profit। आपका होता है ऐसे नॉर्मल होती है ना, कि आप पहले कास्ट अपनी मालूम कर लेते हैं, जी ये चीज़ बना रहा हूँ, मेरी कितनी कास्ट आएगी, इसमें आप अपना 20% 30% प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। Marketing must then convince buyer that the product value at their price justifies its purchase। ठीक है। If the price turn out to be high, company must settle for lower markup and low sales। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो सेल्स का प्रॉब्लम बन जाता है, both resulting in disappointing profit। ये प्राइस ड्राइवन है। और वैल्यू ड्राइवन में क्या है, वैल्यू बेस्ड में कंपनी जो है पहले क्या करती है, कस्टमर के नीड्स और वैल्यूज को, परसेप्शन को एक्सेस करती है, देन अपने सेट करती है प्राइस की, यार कस्टमर की जो रेंज हो सकती है। द टारगेट वैल्यू एंड प्राइस ड्राइव decision about what cost can be incurred and the resulting product design। As a result, pricing begins with analyzing consumer needs, value perception, and the price is set to match perceived value। ये जनाब आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू बेस्ड है, याद रखिएगा आप, ठीक है। कास्ट बेस्ड और वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में उम्मीद है कि आपको क्लियर है। कास्ट बेस्ड में सबसे पहले क्या होता है, आप प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, फिर आप देखते हैं यार इसके ऊपर कितनी कास्ट आ रही है, ठीक है, फिर आप पर इसमें प्रॉफिट ऐड करके अपनी कीमत मुतय्यन करते हैं। थर्ड नंबर पे सेट प्राइस। फिर आप कस्टमर को कन्विंस करते हैं कि जी इतने में ही आ रही है। जबकि वैल्यू बेस्ड में क्या है कि आप कस्टमर्स की नीड्स एंड वैल्यूज़ को पहले एक्सेस करते हैं, फिर आप टारगेट प्राइस को देखते हैं कि जो कस्टमर परसीव करते हैं, फिर आप उसकी प्राइस डिटरमिन करके डिज़ाइन करते हैं, लोगों को डिलीवर करते हैं। अच्छा, एक गुड वैल्यू प्राइसिंग आ गई, ये क्या है गुड वैल्यू प्राइसिंग, इसको देखते हैं। अच्छा, कहता है मोर एंड मोर मार्केटर्स हैव अडॉप्टेड द स्ट्रेटजी ऑफ गुड वैल्यू pricing, offering the right combination of quality and good service at a fair price। बस ये आसान सी है, ठीक है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी है, ऑफरिंग जस्ट द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड गुड सर्विस एट अ फेयर प्राइस। फिर आपकी आती है वैल्यू एडिड प्राइसिंग। वैल्यू एडिड प्राइसिंग में क्या कहता है, वैल्यू एडिड प्राइसिंग डजंट मीन सिंपली चार्जिंग व्हाट कस्टमर want to pay or setting low price to meet competition। Instead, many companies adopt value added pricing strategies rather than cutting price to match competitors। They add quality, services, and value added feature to differentiate their offer, and they thus support their हायर प्राइसेस। ठीक है, वैल्यू एडेड क्या है कि अपने कंपेटिटर के मुकाबले में जो ये सिर्फ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दे रहे हैं वो क्वालिटी वाइज अच्छी है, ठीक है। टू डिफरेंशिएट देयर ऑफरिंग एंड दे सपोर्ट देयर हायर प्राइसेस, जो हाई प्राइस ये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। फिर आपके पास कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग आ जाती है। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में क्या होता है, वेरी सिंपल इसने बताया है, cost based pricing involves setting price
बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट, प्लस एक फिर उनका अपना रिटर्न इसमें आ जाता है। अ कंपनी कॉस्ट मे बी इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन इट्स प्राइसिंग स्ट्रेटजी। अब सम कंपनीज सच एज कहता है वॉलमार्ट वगैरह जो हैं, वर्क टू बिकम अ लो कॉस्ट प्रोड्यूसर इन देयर इंडस्ट्रीज। कंपनीज विद लो कॉस्ट कैन सेट lower prices that result in smaller margins but greater sales and profit। अब इनका क्या मार्जिन कम होता है लेकिन इनका सेल्स और प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होता है। तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल के थ्रू प्रॉफिट अर्न कर लेती हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ कास्ट है फिक्स्ड कास्ट, वेरिएबल कास्ट, टोटल कास्ट, ये सारी हम बातें कर चुके हैं, ठीक है। आप इनकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। ये लर्निंग कर भी हो गया, इकोनॉमिक्स में हमने कर लिया। कास्ट प्लस प्राइसिंग में क्या है कि आप अपनी कास्ट बनाते हैं, टोटल कास्ट प्लस आप अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देते हैं। एडिंग आ स्टैंडर्ड मार्कअप, मार्कअप ये हम तो प्रॉफिट कहते हैं ना, तो ये जो नॉन मुस्लिम्स हैं इनके लिए मार्कअप के लफ्ज़ है, ठीक है। इंटरेस्ट भी हो जाए, स्पेसिफिकली मार्कअप जो है उसके लिए ही यूज़ किया जाता है। एडिंग अ स्टैंडर्ड मार्कअप टू द कास्ट ऑफ द प्रोडक्ट, आपकी टोटल कास्ट फॉर एग्जांपल 16 ये यहाँ पे है, ठीक है। आप इसमें 5 या 4 रुपीज़ और डाल के आप 20 जो है वो प्राइस बना लेते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस और टारगेट प्राइसिंग, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा है जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस है। टारगेट प्राइसिंग में क्या होती है कि आप अपना एक टारगेट रख लेते हैं, जनाब हमने इतना ये ऐड करना है। फिर कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है, आप कंपेटिटर्स को एनालाइज करते हैं, कहता है कि सेटिंग प्राइजेस बेस्ड ऑन कंपेटिटर्स स्ट्रेटजीज, प्राइस कास्ट मार्केट ऑफरिंग, ठीक है। यहाँ पे आता है फिर टारगेट कास्टिंग। टारगेट कास्टिंग का क्या मतलब है कि आप अपनी कास्ट को टारगेट बनाते हैं, यार ये प्रोडक्ट हमने इतने रुपीस के अंदर अंदर ही बनानी है। प्राइसिंग दैट स्टार्ट्स विद एन आइडियल सेलिंग प्राइस, देन टारगेट्स कास्ट दैट विल इंश्योर दैट द प्राइस इज मेट, ठीक है। आप इसके ऊपर अपने कास्ट को टारगेट करते हैं। यहाँ पे अगर थोड़ा सा मज़ीद देख लें, कहता है कि मैनी फर्म्स स्पोर्ट सच प्राइस पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज विद द टेक्निक कॉल्ड टारगेट कास्टिंग। टारगेट कास्टिंग reverses the usual process of the first designing a new product, determine its cost, and then asking can we sell it for that, क्या हम इतने की बेच सकते हैं। मार्केट डिमांड, सप्लाई, एनालाइजिंग द प्राइस डिमांड। हाँ, प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप तो हमने पहले भी देख लिया है कि नेगेटिव है, इन्वर्स होता है। जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ती हैं डिमांड कम होती जाती है, इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। A curve that shows the number of units the market will buy in a given time period at different prices, ठीक है। फिर प्राइस इलास्टिसिटी, सारी हम बात कर चुके हैं। कुछ इलास्टिक होते हैं, कुछ इन इलास्टिक, कोई परफेक्ट इलास्टिक है, कोई परफेक्टली इन इलास्टिक होती हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने पेनिट्रेशन वगैरह नहीं बताई, शायद ये 11 चैप्टर में बताएगा। ये भी मार्केटिंग चैप्टर, हाँ ये, हाँ अब कुछ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हैं, न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। उम्मीद है स्क्रीन भी शेयर हो रही है। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज यूजुअली चेंज एज द प्रोडक्ट पास थ्रू इट्स लाइफ साइकिल। द इंट्रोडक्टरी स्टेज इज स्पेशली चैलेंजिंग। कंपनीज ब्रिंग आउट अ न्यू प्रोडक्ट, face the challenge of setting price for the first time. They can choose between two broad strategies, market skimming और market penetration। मार्केट स्कीमिंग क्या होती है, many companies that invent new products set high initial price to skim revenue layer by layer from the market। कोई भी नया मॉडल आता है, आप देखते हो कि उसकी प्राइस ज़्यादा होती है, फिर आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू मंथ उसकी प्राइस कम होना शुरू हो जाती है। फिर जब नया मॉडल आता है उसकी हाई हो जाती है, उसकी लो हो जाती है। एप्पल की बात करता है, फ्रीक्वेंटली यूजेस दिस स्ट्रेटजी कॉल्ड मार्केट स्किमिंग, ठीक है।
ये प्राइस स्कीमिंग। With each new generation of Apple iPhone, iPad, computer, new model starts at a high price, then work their way down as a new model are introduced। तो ये क्या है कि जो स्टार्ट में हाईएस्ट प्राइस रखते हैं ये मार्केट स्कीमिंग है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे डेफिनेशन देखते हैं, कहता है कि सेटिंग अ हाई प्राइस फॉर न्यू प्रोडक्ट टू स्किम मैक्सिमम रेवेन्यूज लेयर बाय लेयर फ्रॉम द सेगमेंट विलिंग टू पे द हाई प्राइस। तो ये जो अर्ली बर्ड्स हैं वही पे करते हैं। द कंपनी मेक्स फ्यू बट मोर प्रॉफिटेबल सेल्स। मार्केट पेनिट्रेशन क्या होती है? रैद कहता है कि रेदर देन सेटिंग हाई प्राइस टू स्कीम ऑफ स्मॉल but profitable market segment, some companies use market penetration. Companies set a low initial price to penetrate the market quickly and deeply, to attract a large number of buying buyers quickly and win a large market share. The high sales volume result in falling cost, allowing companies to cut their price even further। ठीक है, तो ये मार्केट पेनिट्रेशन है, ये बहुत अहम है, याद रखिएगा। फिर प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजीज क्या है? ये प्रोडक्ट लाइन आ गई। ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग है। कैप्टिव बाय प्रोडक्ट, इसको हम देख लेते हैं। प्रोडक्ट लाइन क्या होता है? डेफिनेशंस पे ही गुजारा करते हैं। सेटिंग द प्राइस स्टेप्स बिटवीन वेरियस प्रोडक्ट्स in a product line based on cost difference between the products, customer evaluation of different features and competitors price। इसमें क्या करते हैं? सेटिंग द प्राइस स्टेप्स बिटवीन वेरियस प्रोडक्ट्स, आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स की रेंज के अंदर जो है इसको रखते हैं। जैसा कि बाकी अगर प्रोडक्ट्स आपकी 1000 और 1500 के दरमियान है तो आप भी इसी रेंज में रखते हो। ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है? द प्राइसिंग ऑफ ऑप्शनल आर accessory products along with the main products। ठीक है, मेन प्रोडक्ट्स के साथ जो बाई होती हैं इसकी कंपल्सरी गुड्स जो होती है। फिर कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है? सेटिंग अ प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट्स that must be used along with the main product such as blade for razor। ठीक है, games for a video game। ठीक है, ये उसके बारे में है। बाई प्रोडक्ट क्या होती है? हम अक्सर अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा था कि जब हमारा प्रोसेस चल रहा होता है तो मेन प्रोडक्ट के साथ बाई प्रोडक्ट भी आ रही होती हैं। सेटिंग अ प्राइस फॉर बाई प्रोडक्ट टू हेल्प ऑफसेट द कॉस्ट ऑफ डिस्पोजिंग देम एंड हेल्प मेक द मेन प्रोडक्ट प्राइस मोर कम्पिटिटिव। तो उससे आप अपना ये है कि चलो अपनी डिस्पोजल कॉस्ट तो कम से कम निकाल रहे होते हैं। अब बाई प्रोडक्ट की को काफ़ी एग्जांपल्स हो सकती हैं। ठीक है, अब आप शुगर बना रहे होते हैं, चीनी, तो आपकी बाई प्रोडक्ट वो जो चीनी के बाद भूसा निकलता है वो हो सकता है। ठीक है, फिर प्राइस बंडल प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग क्या है? कंबाइनिंग सेवरल प्रोडक्ट्स एंड ऑफरिंग द बंडल एट अ रिड्यूस प्राइस। वो फैमिली ऑफर, फैमिली पैकेज जो कहते हैं। ठीक है, फिर आप डिस्काउंट भी देते हैं। डिस्काउंट क्या है? अ स्ट्रेट रिडक्शन इन प्राइस ऑन परचेज ड्यूरिंग अ स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम ऑफ लार्ज क्वांटिटीज। कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में एक मखसूस पीरियड के अंदर पड़ेंगे तो डिस्काउंट है। अब ट्रेड डिस्काउंट होती है, कैश डिस्काउंट भी होती है। ट्रेड डिस्काउंट वो होती है जो आप लिस्ट प्राइस पे देते हैं। इसके बारे में हमने अकाउंटिंग में बात की है कि इसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखते। फॉर एग्जांपल आप परचेज़ करने के लिए गए हैं 10,000 की, वो आपको 9,000 की मिल गई है, तो आप जो है वो परचेज़ क्या है 9,000 की ही लिखेंगे। फिर कैश डिस्काउंट ये होती है जो कि आप पेमेंट के टाइम अपने जो डेटर है उनसे कैश लेते वक़्त उनको डिस्काउंट करते हैं। अगर आपने पैसे लेने थे 9,000 किसी से, ठीक है, और वो आपको 8,000 दे रहा है तो आपने क्या है उसको डिस्काउंट दी है। तो अगर आपने दी है तो वो क्या होगा? डिस्काउंट अलाउ होगा और ये आपका डेबिट होगा 1000 से, और ये आपका एक्सपेंस है। अगर आपने डिस्काउंट खुद ली है तो आपका क्या है? आपकी रेवेन्यू होगी, क्रेडिट होगा। ऐसे फिर आगे 210 नेट 30 का बता रहा है, ये भी हम अक्सर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे कि भाई अगर ये बंदा जो है हमें ना 10 दिन के अंदर अंदर कैश दे दे तो हम इसको 2% मज़ीद डिस्काउंट दे देंगे, वरना इसको 30 डेज़ के अंदर तो हमें पे करनी करनी है।
ठीक है। फिर समटाइम आप सीजनल डिस्काउंट भी देखते हो मार्केटिंग का, क्योंकि ये चैप्टर है। ट्रेड डिस्काउंट हमने ऊपर बात कर ली। सीजनल डिस्काउंट इज द प्राइस रिडक्शन टू बायर हु बाय मर्चेंडाइज और सर्विस आउट ऑफ सीजन। ठीक है। तो अलाउंसेस क्या होते हैं, डिस्काउंट से कैसे डिफर करते हैं? अलाउंसेस आर अनदर टाइप ऑफ रिडक्शन फ्रॉम द लिस्ट प्राइस। फॉर एग्जांपल ट्रेड इन अलाउंस आर प्राइस रिडक्शंस गिवन फॉर टर्निंग an old item when buying a new item। ठीक है। Trade in allowance are most common in the automobile industry, but they are also given for other durable goods। फिर प्रमोशनल अलाउंस होते हैं या पेमेंट्स हैं, प्राइस रिडक्शन है, डेट रिवार्ड डीलर फॉर पार्टिसिपेटिंग इन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स सपोर्ट प्रोग्राम में। फिर आप सेगमेंटेड प्राइसिंग करते हैं। सेगमेंटेड प्राइसिंग क्या होती है? कंपनीज विल ऑफन adjust their basic price to allow for differences in customers, product, and location. In segmented pricing, क्या company sells a product or service at two or more prices, even though the difference in price is not based on difference in cost। अब आप ये चीज़ एयरपोर्ट पे जाके खरीदो, आपको महंगी मिलेगी। Segmented pricing takes several form under customer segment pricing। Different customers pay different price for the same product and service। ठीक है। अब जैसा कि बाहर की कंट्री से पाकिस्तान लोग आ रहे हैं सस्ती टिकटों पे, अब वापसी पे जा रहे हैं ना, लाग उनको पता रहा है। ओके जी, नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेगमेंटेड प्राइसिंग हमारी हो गई है आई थिंक। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल क्या है? हमारी साइकी को इमोशंस के मुताबिक ही डील करते हैं कि लोगों की क्या साइकी है। प्राइसिंग दैट कंसिडर्स द साइकोलॉजी ऑफ प्राइस एंड नॉट simply the economics। The price is used to say something about the product कि जितनी महंगी प्रोडक्ट है, ठीक है, या कितनी सस्ती प्रोडक्ट है। एंड यूजिंग साइकोलॉजिकल प्राइसेस सेलर्स कंसिडर द साइकोलॉजी ऑफ प्राइस, not simply economics। For example, consumer usually perceive high price product as having high quality when they can judge the quality of a product by eliminating it or by calling on past experience with it। They use price less to judge quality। ठीक है। तो क्वालिटी बेस। फिर रेफरेंस प्राइसेस होती हैं, प्राइस दैट बायर कैरी इन देयर माइंड्स एंड रेफर टू व्हेन दे लुक एट अ गिवन प्रोडक्ट। ठीक है, कि ऐसी प्रोडक्ट हमने फलां पे ली थी। खासकर फीमेल कहती हैं कि भाई हम तो आपसे ऐसे ही ले गए थे प्रोडक्ट जी, ये कपड़े हमने आपसे परसों तरसों इतने के लिए थे। ठीक है। इमोशनल प्राइसिंग क्या है? कहता है डेफिनेशन में लेफ्ट साइड पे देख रहा हूँ, टेम्परेरी प्राइसिंग प्रोडक्ट बिलो द लिस्ट प्राइस एंड समटाइम्स इवन बिलो कॉस्ट टू इंक्रीज शॉर्ट रन सेल्स। ठीक है, ये प्रमोशनल प्राइसिंग है आपकी। जियोग्राफिकल प्राइसिंग, आपको चीज़ें जो है जियोग्राफिकल बेस पे मिलती हैं। जैसा कि आप एक गाड़ी आपने यहाँ से पंजाब में लेनी हो, आपको बड़ी महंगी मिलेगी। कोई कल्टस जो है आपको अगर इधर बलूचिस्तान चले जाओ, आपको 5 लाख में मिल जाएगी। ठीक है। सेटिंग प्राइस फॉर कस्टमर लोकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री और वर्ल्ड, ये मैटर कर रही है। एफ ओ पी ओरिजिन प्राइस क्या है? फ्री ऑन बोर्ड। ये क्या है? प्राइसिंग इन विच गुड्स आर प्लेस्ड फ्री ऑन बोर्ड अ कैरियर, अ कस्टमर पेज द फ्रेट फ्रॉम द फैक्ट्री टू द डेस्टिनेशन। ये इम्पोर्टेड गुड्स के लिए होता है। ठीक है। फिर यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग क्या है? प्राइसिंग इन विच द कंपनी चार्ज द सेम प्राइस प्लस फ्रेट टू ऑल कस्टमर रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन। ठीक है। फिर जोन प्राइस क्या है? प्राइस इन विच द कंपनी सेट अप टू और मोर जोन, ऑल कस्टमर विद इन द जोन पे द सेम प्राइस, द मोर डिस्टिंक्ट द जोन द हायर द प्राइस आपकी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। फिर बेसिंग पॉइंट आपकी प्राइसिंग है, प्राइस इन विच द सेलर designates some city as a basing point and charge all customer the freight cost from that city to the customer। फिर फ्रेट एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग है, प्राइसिंग इन विच द सेलर एब्जॉर्ब ऑल or part of the freight charges in order to get the desired business।
ठीक है, ये फ्रेट एब्जॉर्प्शन बिजनेस है। डायनामिक प्राइस क्या है? एडजस्टिंग प्राइस कंटिन्यूअसली टू मीट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर एंड सिचुएशन। फिर इंटरनेशनल प्राइजेज हैं, प्राइस चेंज भी होता है, इनिशियल प्राइस चेंज होता है, शुरू में आप प्राइस कट लगाते हैं प्रमोशनल ऑफर्स के लिए। इंक्रीजिंग प्राइस, इंक्रीज जो प्राइस स्कीमिंग हमने देखा था, तो बायर्स का क्या रेस्पॉन्स आता है, इसमें कोई डेफिनेशन नहीं आ रही, वरना मैं आपको वो भी पढ़ा दूँ। नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है आपका मार्केटिंग चैनल्स का, किन किन चैनल्स के थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हैं, इफेक्टिव आपकी मार्केटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो कहता है प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस एंड मेकिंग इट अवेलेबल टू बायर्स। Producing a product or service and making it available to buyers requires building relationship not only with customers but also with key supplier and reseller in the company supply chain. Supply chain consists of upstream and downstream partner भी होते हैं। Upstream from the company is the set of firm that supply the raw material, जो आपके supplier हैं, जिसको आप backward भी कहते हो। Component, part, information, finance, expertise needed to create a product and service. Marketers, however, have traditionally focused on the downside पे भी इन्होंने फोकस किया है। डाउनसाइड में क्या है कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आ जाते हैं, द मार्केटिंग चैनल्स दैट लुक टूवर्ड द कस्टमर, जो कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, डाउनस्ट्रीम मार्केटिंग चैनल पार्टनर सच एज होलसेल रिटेलर form a vital link between the firm and its customer. The term supply chain may be too limited as it takes a make and sell view of the business. It suggests that raw material, productive input, factory capacity should serve as a starting point for making planning. The better term could be demand chain because it suggests a sense and respond view of the market. ठीक है, तो वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क, यहाँ पे भी हम जिस टर्म्स को ही देखते हैं, वरना चैप्टर बहुत लेंथी है, आप भी परेशान हो जाएंगे। वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क क्या होता है जी? अ नेटवर्क कंपोज्ड ऑफ द कंपनी, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड अल्टीमेटली कस्टमर्स who partner with each other to improve the performance of the entire system in delivering customer value. तो द नेचर एंड इम्पोर्टेंस मार्केटिंग चैनल क्या होते हैं? मार्केटिंग चैनल हैं अ सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प मेक अ प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल फॉर यूज और कंजम्पशन बाय कंज्यूमर और बिजनेस यूजर्स। ठीक है, तो ये कैसे आपको वैल्यू करते हैं? आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, आपके प्रोडक्ट की प्रमोशन, कॉन्टैक्ट, मैचिंग, निगोशिएशन, ये सारी की सारी इसमें चीज़ें आपकी आ जाती हैं। फिर चैनल लेवल, डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है? मार्केटिंग चैनल दैट हैज़ नो इंटरमीडिएट लेवल, और जिसका इंटरमीडिएट लेवल हो वो आपका इनडायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, चैनल बिहेवियर, चैनल कन्फ्लिक्ट। Channel conflict a disagreement among marketing channel members on goals, roles, reward, who should do what and for what reward। ठीक है, ये चैनल कन्फ्लिक्ट इनका आ जाता है। फिर आपका आता है कन्वेंशनल और वर्टिकल मार्क डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। आपको जस्ट समझा देता हूँ, एक्स्ट्रा पढ़ ले, पेपर में इतना ज़्यादा डेप्थ में आता कोई नहीं है। अ चैनल कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, each a separate business seeking to maximize its profit, perhaps even at the expense of profit for the system as a whole। फिर VMS क्या है? वर्टिकल मैनेजमेंट सिस्टम, मार्केटिंग सिस्टम, a channel structure in which producer, wholesaler, retailer act as a unified system. One channel member owns the other, the contract will them or has so much power that they all कॉपरेट करते हैं। ठीक है, ये VMS को बस देख लो, वर्टिकल मैन मार्केटिंग सिस्टम की डेफिनेशन।
फिर कंट्रैक्चुअल होते हैं, कुछ फ्रेंचाइज होती हैं। कंट्रैक्चुअल में क्या होता है, अ वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम इन विच इंडिपेंडेंट फर्म एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जॉइन टुगेदर थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। जबकि फ्रेंचाइज में क्या है, कंट्रैक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम जो ऊपर हमने पढ़ा है, इन विच चैनल मेंबर कॉल्ड अ फ्रेंचाइजर लिंक्स सेवरल स्टेजेस इन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एडमिनिस्ट्रेड। चैप्टर इतना ज़्यादा नहीं है। हॉरिजेंटल मार्केटिंग सिस्टम क्या है, चैनल अरेंजमेंट इन विच टू आर मोर कंपनीज एट वन लेवल जॉइन टुगेदर टू फॉलो अ न्यू मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। डिस इंटरमीडिएशन, हाँ ये देख लेते हैं, टर्म थोड़ी नई आ रही है। द cutting out of marketing channel intermediaries by product or service producer or the displacement of traditional reseller by radical new type of intermediaries। ऑब्जेक्टिव इसके लिए चेक कर लीजिएगा। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, स्टॉकिंग द प्रोडक्ट इन एज मैनी आउटलेट्स एज पॉसिबल। थोड़ी सी आंखें ना मेरी दर्द कर रही हैं आज स्क्रीन के सामने, तो थोड़ा सा आप इसको ना रीड कर लीजिएगा इस चैप्टर को। मार्केटिंग चैनल मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। ठीक है, लॉजिस्टिक्स है, वेयर हाउस आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर आपके आ जाते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट आ जाती है, इंटीग्रेटेड, बस पढ़ने वाली चीज़ें हैं। थर्ड पार्टी है। तो ये चैप्टर एंड होता है यहाँ पर। नेक्स्ट चैप्टर हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे, रिटेलिंग एंड होलसेलिंग। तब तक आप इन 3 चैप्टरों को कवर कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।